Hi guys, let's solve UPSC EPFO 2023 सॉल्व पेपर। तो मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ इसे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 से, बिकॉज द इनिशियल पार्ट इज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनएससी प्राइम क्या है? समटाइम्स मेंशन इन न्यूज। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये डिनोट करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो एनएससी प्राइम क्या है? इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रिस्क्राइब हायर स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हायर स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस for listed companies than those required by regulation, the exchange said in a statement. Additional disclosure requirements have also been prescribed to provide for higher quality of public information and greater transparency. So NSE Prime High Standard Corporate Governance. Coming to question number second. Which of the following statement best describe the term PROS DX sometimes seen in news? तो ये कुछ हटके है जो कि सीएससी के जो तैयारी करते हैं। तो इसका आंसर है बी, अ डेटाबेस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर एकेडमी। तो PROS DX is a database of financial data on Indian companies. It is a subset of the PROS database which is used by research and analysts to study Indian companies. Designed for academics, it provides a time series of financial market data since 1990. Also provides standardized data on listed and unlisted companies. 118 पे आते हैं। Quantified domestic minimum top-up tax is generally talked about in which context? तो इसका आंसर है ए, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। is generally talked about in the context of global anti-base erosion rules. Anti-base erosion rules are designed to address concerns related to shifting of profit to low tax jurisdiction and the erosion of tax base in higher tax jurisdiction. Various international efforts such as the base erosion profit shifting project led by the Organization of Economic and Cooperation Development have been working on developing rules and guidelines to prevent such practices. तो ये टैक्स सेविंग का कुछ तरीका है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। तो इसमें है मैच करना है। तो इसका आंसर है बी, सिर्फ 2 जो है वो करेक्टली मैच है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट वाइज कर देता हूँ। स्कोप 1 emission का जो है डायरेक्ट emission from source owned or controlled by the company. These emission include the combustion of fossil fuels, industrial process and transportation. स्कोप 2 में आता है indirect emission from the generation of purchased energy. This includes the purchase of electricity, steam, heat और cooling. और स्कोप 3 में आता है indirect emission that are consequences of the company activities but occur from sources not owned or controlled by it. These emissions are also known as the company carbon footprint. तो स्कोप 2 ही सिर्फ ये सही है क्योंकि यहाँ पे इमिशन एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, हीट एंड कूलिंग ओन यूज आता है। और स्कोप 3 में आता है कार्बन फुटप्रिंट। दिस इज कार्बन फुटप्रिंट। और स्कोप 1 में आता है इमिशन सोर्स ओन्ड और कंट्रोल बाय द कंपनी। नहीं, ये नहीं है। डायरेक्ट इमिशन फ्रॉम सोर्स, डायरेक्ट emission from sources owned and controlled by company. These emissions include combustion of fossil fuel, ठीक है, industrial process है and transportation. Question number 116 पे आते हैं। Large language model sometimes described in news can be used in which of the following? Large language model, तो इसका आंसर है डी, creation of reimagined search engine, healthcare, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रांसलेटिंग अ लैंग्वेज। तो सब में काम आएगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एआई होता है, काइंड ऑफ एआई, ठीक है, एल्गोरिथम दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी task. LLM are trained using large amount of text data and transform models which allows them to recognize, translate, predict, generate, जैसे कि जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी भी मान सकते हैं। तो क्रिएशन ऑफ सर्च इंजन वो भी करते हैं, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रांसलेटिंग, सो एनीथिंग यू वांट टू गेट डन थ्रू एआई। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सारा कुछ कलेक्ट करके ये लोग एक बार में एकदम निकाल देते हैं। तो 115 पे आते हैं। इसका आंसर है ए,
Recently, which one among the following committed up $2.5 billion for the next 5 years to fund India's infrastructure creation under Prime Minister Gati Shakti initiative as well as social development and climate action, thus aiding India's aspiration for green growth? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये मैं वीडियो से 10 से 12 मिनट का रखूंगा और आई विल ब्रिंग दिस इन पार्ट वाइज सो दैट इट विल नॉट गेट बोरिंग और जल्दी जल्दी करने का भी मन करेगा। तो 114 का है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट्स द पैकेजिंग ऑफ 100% शुगर एंड फूड ग्रेन्स इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग। The Government of India enacted jute packaging material compulsory use in packaging commodities Act 1987। तो इसका आंसर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, ए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The government has approved mandatory packaging of 100% food grains and 20 sugar in diversified jute bag for jute year 2023-24। ये करंट का क्वेश्चन है। 113 पे आते हैं। A very strong US dollar squeezes global credit। ठीक है, मेनी कंट्रीज एंड कंपनीज आउटसाइड अमेरिका बोरो इन डॉलर। तो इसका आंसर है ए। बहुत सही है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग डॉलर होता है वो ग्लोबल जो क्रेडिट होता है उसको एक्सक्यूज कैसे करता है, वो मतलब पूरा निचोड़ लेता है। ठीक है, और मेनी कंट्रीज कंपनी आउटसाइड अमेरिका बोरो इन डॉलर। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर है ना, स्ट्रॉन्ग डॉलर कैन पुट अ फाइनेंशियल एक्सक्यूज अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड। Many companies and government in such emerging market borrow money in US dollar terms instead in their own currency when they must repay their debt in US dollar while their own currency buy fewer dollar by the day। It create a lots of stress। तो ये सही है, थोड़ा इसको 2-3 बार सुनने से ये क्लियर होगा कि यूएस डॉलर का बहुत डिमांड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होने का रीजन भी एक ही है कि उनका करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एवरीवन डिमांड्स इट। तो स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर excuses global credit। Many countries and companies outside America borrow in dollar, इसीलिए तो ग्लोबल क्रेडिट को एक कर रहा है। 112 पे आते हैं। In India, the RTGS and NEFT payment system are owned and operated by National Payment Corporation of India और NPCI is an entity promoted by bank। तो ये यूपीएससी का भी पीवाईक्यू इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू देखते हैं तो वहां भी ये चीज मिल जाएगा। इसका आंसर है डी, जो पहला है इनकरेक्ट है और सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये शायद 2 कंपनी मिलकर बनाता है। सबसे पहले देखते हैं एनपीएस इन इंडिया आरटीजीएस एंड एनईएफटी पेमेंट सिस्टम आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय, सबसे पहले आरबीआई। ठीक है, ये याद रहेगा। आरबीआई कौन करता है? आरटीजीएस एंड एनईएफटी। 50,000 से ऊपर जब पेमेंट करते हैं तो जल्दी जल्दी कराने के लिए हमें करना पड़ता है। तो ये एनपीसीआई नहीं करता है, आरबीआई करता है, सी। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI which is not for profit entity promoted by banks। तो ये ठीक है, दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट। और IMPS, रुपे, यूपीआई, तो ये सब ओन करता है NPCI। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद Reserve Bank of India in terms of consumer price index once in every 5 years। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। एट प्रेजेंट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद RBI in terms of consumer price index once in a 5 year। मॉनेटरी पॉलिसी एट प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, आरबीआई यहाँ पे आता है। तो देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद बैंक डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स once in every 5 years
और RBI is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly mandated under RBI Act 1934. तो RBI Act 1934 में ये चीज दिया हुआ है। 110 पे आते हैं। Which of the following statement with reference to Atal Vayo अभ्युदय योजना is correct? तो इसका आंसर हो जाएगा C 1 and 2। इसको पढ़ते हैं। Fulfill basic needs of destitute elderly citizen, build and strengthen intergenerational relationship through regional resource and training center। थर्ड है provide guaranteed monthly pension to early citizen, नहीं। establish अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर अर्ली सिटीजन, नहीं। तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन had been renamed at Atal Vayo Abhyudaya Yojana. Department of Social Justice and Empowerment is the nodal department for the welfare of senior citizens. To empower the elderly, ensuring their active participation and inclusion in society, to create an environment where senior citizens can live a life of dignity, respect and fulfillment, acknowledging their invaluable contribution to the nation. So यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर। थैंक यू।